میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر، تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر، تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر۔ ماہ محرم کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن میں ماہ محرم پہلا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری۔ محرم کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ محرم ایک عربک روٹ حرام کلمہ سے بنا ہے، مو پلس حرام۔ عرب میں مو ایک ایسا کلمہ ہے جس کو اس میں فاعل یا اس میں مافعول کہتے ہیں، جس سے عربی میں استعمال کر کے کسی بھی کلمے کو ایسا بنایا جاتا ہے جیسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کلمہ آپ کو کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اور حرام کے معنی ہوتے ہیں پابندی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو خاص کام کے لیے منع کر رہا ہے۔ اس حساب سے مو پلس حرام بنتا ہے محرم، جس کے معنی ہوتے ہیں پابندی لگانے والا مہینہ۔ عرب کے اندر ذرا سی بات پہ قبیلے میں بغاوت ہو جایا کرتی تھی اور نتیجہ جنگ تک پہنچ جاتا تھا۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو اللہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور بخاری شریف کے مطابق وہ 4 مہینے میں سے پہلا محرم مہینہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4662۔ رمضان کے بعد روزے رکھنے کے جو مجرب مہینے ہیں وہ ماہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان 4 مہینے میں خاص طور پہ نیکی کا حکم دیا ہے اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے جنگ کرنے کو کہتا ہے تو آپ اسے منع کریں، خاص طور پہ اس 4 مہینے میں، اور پھر بھی اگر وہ نہیں مانے تو پھر آپ جنگ لڑیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سختی طور پہ اس ماہ محرم کے مہینے میں جنگ کرنے سے منع فرمایا ہے اور کسی بھی چھوٹے بڑے گناہ کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ماہ محرم کی خاص فضیلتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کو لگی وہ ماہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو فرعون سے اسی مہینے میں نجات ملی۔ پہلی محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کو ہجرت کی۔ پہلی محرم کو اسلام کے دوسرے خلیفے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دوسرے مہینے کو حسین ابن علی کربلا پہنچے۔ 7 محرم کو حسین ابن علی پر پانی بند کیا گیا۔ 10 محرم کو شہادت امام حسین اور ان کے سارے ساتھی کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ 17 محرم کو عام الفیل جو ایک ایسی گھٹنا تھی، یمن سے ایک بغاوت کرنے والا انسان جس کا نام ابراہہ تھا، وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے پہنچا۔ 20 محرم کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ناظرین، ماہ محرم میں اور بھی کئی ساری فضیلتیں ہیں، جیسے کہ روزے رکھنے، غریبوں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلانے، اس میں اپنے طرف سے خیرات اور صدقات کرنے اور مفلسی کی مدد کرنے، اور بھی بہت سارے ان میں نیکی کمانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس میں بے انتہا نیکی کمانے کا حکم بھی ہے۔ آپ بے شمار قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور کئی ایسی فضیلتیں ہیں اور خاص دعائیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔
मेरा मशवरा है कि इस महीने में सबसे बेहतरीन जो कलमा है वो पाके कलाम है, जिसकी तिलावत करके हम अपने नामे अमाल में बेशुमार नेकी कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हजरत एक गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में बताएंगे। हजरत एक गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भरपूर थी। उनकी करामात ऐसी है जो दिल को सुकून देती हैं और ईमान को मजीद मजबूत करती हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे वाकयात सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपका यकीन और बढ़ जाएगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इन मुबारक बातों से भरपूर फायदा उठा सकें। क्या आपने कभी सुना है उस बच्चे के बारे में जो खेलते खेलते गैब की आवाजें सुन लेता, डर कर माँ की गोद में छुप जाता और मदरसे में फरिश्ते उसके लिए जगह बना देते? जवानी आती है तो अचानक एक बैल बोल उठता है, तुम इसके लिए नहीं बनाए गए। और बगदाद के सफर में जब डाकू उसे घेर लेते हैं तो वह माँ की नसीहत पर सच बोलकर सबको दंग कर देता है। यही बच्चा जलेबी वाले की तकदीर बदल देता है और दुआ से डूबी हुई कश्ती को पार लगा देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नमाज में एक जहरीला सांप उसके जिस्म से लिपट जाता है। वही जिन जो दुश्मन बनकर आया था आखिरकार उसके हाथों। दोस्तों, यह है हुजूर गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो हस्ती जिनकी करामात सुनकर आज भी इंसान की रूह कांप उठती है और दिल यकीन से भर जाता है। नाजरीन, हुजूर मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के वक़्त कई वाक़यात ज़हूर में आए। आपकी विलादत की रात आपके वालिद मोहतरम ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबा ए कराम और औलिया के हमराह तशरीफ लाए और फरमाया, ए अब्बू सालेह, तुझे अल्लाह ताला ने सालेह फर्जंद अता फरमाया जो मेरी नस्ल से है। वो मेरा और अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब है और औलिया में उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। ये हकीकत में हैरत अंगेज है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत की रात सूबा जीलान में कोई लड़की पैदा नहीं हुई। उस रात सिर्फ लड़कों की पैदाइश हुई जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 थी। मजीद ये कि उस रात जितने लड़के पैदा हुए वो सब वली कामिल बने। ये भी आपकी विलादत की करामत और बरकत थी। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जब मेरे यहाँ अब्दुल कादिर पैदा हुए तो रमजानुल मुबारक शुरू था। अब्दुल कादिर इस माह ए मुकद्दस में दिन के वक्त कभी मेरी छाती से दूध नहीं पीते थे। इत्तिफाकन एक बार बादल की वजह से रमजान के चांद में शक पड़ गया। करीब के चंद आदमियों ने मुंह से पूछा, सैयदा, क्या आपको चांद की कोई सही इत्तला मिली है? मैंने कहा, आज मेरे अब्दुल कादिर ने दिन के वक्त दूध नहीं पिया, इसलिए मैं समझती हूँ कि आज रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है। कुछ अरसा बाद तस्दीक हुई कि उस दिन रमजान का चांद नजर आ गया था। फिर ये बात शहर में मशहूर हो गई कि सादात में एक मुबारक बच्चा पैदा हुआ है जो रमजानुल मुबारक में दिन को दूध नहीं पीता। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अभी होश नहीं संभाला था कि अचानक आपके वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। यूं आप बचपन में ही वालिद के साया शफकत से महरूम हो गए। चूंकि उस वक्त आपके नाना हजरत सैयद अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, इसलिए उन्होंने आपकी परवरिश, तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी उठाई। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं खेला करते थे। आप फरमाते हैं, जब मैं बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता तो गैब से एक आवाज सुनाई देती, ऐ खुदा की बरकत दिए हुए मेरी तरफ आ, मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है, लाहवूफ लब के लिए नहीं। यह आवाज सुनकर मैं डर जाता और भागकर अपनी माँ की गोद में जा बैठता। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह 10 साल की उम्र में अपने शहर के मकतब में पढ़ने जाया करते थे। जब आपसे पूछा गया कि आपको अपने वली होने का इल्म कब हुआ, तो आपने फरमाया, मुझे अपने वली होने का इल्म 10 बरस की उम्र में हुआ। मैं जब मकतब आता तो रास्ते में मलाइका मेरे पीछे चलते दिखाई देते और जब मैं मदरसा पहुंचता तो उन्हें बार बार ये कहते सुना कि अल्लाह के वली को बैठने की जगह दो, अल्लाह के वली को बैठने की जगह दो। जब हुजूर गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 18 साल हुई तो आपने इल्म के लिए बगदाद जाने का इरादा किया। इसकी वजह आपने खुद यूं बयान की, इब्तिदाई उम्र में एक बार मैं अराफात से बाहर निकला। इत्तिफाकन रास्ते में एक जमींदार का बैल जा रहा था। मैं उसके पीछे हो लिया। बैल ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुझसे मुखातिब होकर कहा, ए अब्दुल कादिर, तू इसके लिए पैदा नहीं किया गया,
और न तुझे इसका हुक्म दिया गया। ये सुनकर मेरे दिल में मोहब्बत इलाही के जज्बे और शौक ने जोर मारा। मैं सीधा घर पहुंचा और वालिदा मोहतरमा की खिदमत में जाकर अर्ज किया कि अगर आपकी इजाजत हो तो इल्म के हुसूल के लिए बगदाद चला जाऊं। साथ ही बैल का माजरा भी सुनाया। ये सुनकर मेरी वालिदा उठी और 80 दीनार जो मेरे वालिद से उन्हें मिले थे वो मेरे पास लाईं। मैंने उसमें से 40 अपने भाई के लिए छोड़ दिए, बाकी 40 वालिदा ने मेरी गदड़ी में बगल के नीचे सिल दिए। फिर दुआ करते हुए फरमाया, ए अब्दुल कादिर, मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि हमेशा सच बोलना और कभी झूठ मुंह से न निकालना। इसके बाद मेरी वालिदा मुझे रुखसत करने के लिए बाहर आईं और एक सर्द सांस खींचकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, वही तेरा हाफिज व निगहबान है। वालिदा से रुखसत होकर मैं बगदाद जाने वाले एक काफिले के साथ हो लिया। जब यह काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो अचानक 60 डाकू हम पर टूट पड़े और काफिले का तमाम माल व असबाब लूट लिया, मगर किसी ने मुझसे कुछ न पूछा। थोड़ी देर बाद एक डाकू मुझे देखकर वापस लौटा और कहा, तेरे पास भी कुछ है? मैंने सच सच कहा कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। वो इसे मजाक समझकर चला गया। फिर एक दूसरे डाकू ने पूछा तो मैंने उसे भी सच बताया। वो भी मजाक समझकर चला गया। जब वो दोनों अपने सरदार के पास पहुंचे तो ये सारा माजरा उसे सुना दिया। सरदार ने कहा, अच्छा, उसे मेरे पास पकड़ कर लाओ। वो दोनों दौड़ कर आए और मुझे उसके पास ले गए। मैंने देखा कि वो एक टीले पर बैठकर माल तकसीम कर रहे थे। सरदार ने मुझसे पूछा, सच बता, तेरे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास 40 दीनार हैं। उसने कहा, कहाँ है दीनार? मैंने कहा, बगल के नीचे गद्दी में सिले हुए हैं। सरदार ने गद्दी को उधेड़ कर देखा तो उसमें से 40 दीनार बरामद हुए। ये देखकर सरदार ने हैरानी से कहा, ऐ लड़के, तू जानता है कि हम लुटेरे हैं, जो माल हमें मिलता है उसे लूट लेते हैं। तूने हम लुटेरों के खौफ से इन दीनारों को छुपाकर क्यों न रखा? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी माँ ने चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ के पास भी न भटकना। मैं कैसे वालिदा की नसीहत को छोड़कर 40 दीनार की खातिर झूठ बोल देता? ये सुनकर डाकुओं का सरदार इस कदर मुतस्सिर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने हसरत भरी सांस खींचकर कहा, तूने तो अपनी माँ का अहद नहीं तोड़ा और मैं कई सालों से अपने रब का अहद तोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो मेरे कदमों में गिर पड़ा और उसने मेरे हाथ पर तौबा कर ली। उसके साथियों ने ये हालत देखकर कहा, तू रहजनी में हमारा पेशवा था, अब तौबा में भी हमारा पेशवा है। सब ने मेरे हाथ पर तौबा की और या इलाहुल आलमीन, बहरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली व फातिमा हसन हुसैन मुत्तबा, बख्श हमारे सब गुनाह और कर करम रब्बे करीम, रिज़्क़ व रोजी, जाहो, इज्जत, सब्र, तंदुरुस्ती तू सब कर हमें अता। सैयद सुल्तान व फकीर व ख्वाजा व मखदूम व गरीब, बादशाह व शेख व दरवेश व वली व हम हबीब, सख्त मुश्किल में फंसे हैं लोग खबर दिलगीर हैं, अज पर आए पंजतुन या गौसुल आज़म दस्तगीर, फजल कर या रब मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, हो तो फैल पंजतुन गौसुल वरा के वास्ते, या अय्युहल मुस्ताक़ून बेनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। फजल कर या रब मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, वो तुफैल पंजतन गौसुल वरा के वास्ते। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार।